Good morning, students. In today's class, we are going to solve more problems on bills of exchange. Today, we are going to see how to pass journal entries when there are multiple drawees. मतलब एक ही ड्रॉवर रहता है और उसके जो ड्रॉवीज है वो बहुत सारे रहते हैं. तब हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, that we will see in today's class. Okay, so let's move on to the problem on single drawer and multiple drawee. Okay, give journal entries in the books of Bipin. Okay, you have to pass the journal entries. Now Bipin is who? Bipin is a drawer. Okay, so first one is what? Sonal's acceptance for 3 months of 20,000 was discounted with the Bank of India rupees 19,750. Okay, now this acceptance was for how many months? It was for 3 months. बिल कितने का था? 20,000 का था, लेकिन bill was discounted for how much? 19,750. That means there is a discount. Okay, then next is what? Brinda acceptance of rupees 14,400 retired 1 month before the due date at a rebate of how much? 12% per annum. Okay, बृंदा का जो एक्सेप्टेंस था 14,400 डेट गॉट रिटायर्ड, मतलब उसने क्या किया, ड्यू डेट से पहले ही पैसे भर दिए, तो उसको रिबेट कितना दिया? 12% पर एनम रिबेट दे दिया. डेट मीन्स 12% पूरे ईयर का है. हम लोगों को कितने महीने का पास करना है? वी हैव टू फाइंड इट फॉर 1 मंथ. 1 मंथ के लिए कितना है, डेट यू हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द रिबेट. Okay, third is Rekha's acceptance of rupees 8,500 is endorsed, मतलब उसका जो acceptance है which is given to somebody else, मतलब किसी और के नाम पे कर दिया. Endorsed in favor of Gayatri. Okay, endorsed in favor of Gayatri in full settlement of her account 8,650. Okay, उसका amount कितना था? 8,650, लेकिन full settlement मतलब final clear कर दिया हम लोगों ने पेमेंट कितना देके? 8,500. Then the fourth one is what? Sold goods to Vinaya. Okay, कितना? rupees 20,000 at 8% trade discount. Now here there is trade discount. और हमेशा याद रखना, जब trade discount रहता है then you should not show it in the books of account. हम लोग हमारे books of accounts में नहीं दिखाएंगे. डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो अमाउंट माइनस करके हम लोग क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट, वी विल राइट इट इन अ जर्नल बुक. ओके, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द मेन अमाउंट. सो रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीजिएटली, मतलब हाफ द अमाउंट इमीजिएटली मिला. उसमें क्या किया? उसमें 10% कैश डिस्काउंट दे दिया क्योंकि ही हैड पेड द अमाउंट इमीजिएटली. And further balance of the bill was drawn by Vinay which was accepted by here. Okay, मतलब उसने जो अमाउंट, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो उसने क्या किया? another bill was drawn. So विनया का अमाउंट कितना है? we'll do a working note of this trade discount कैलकुलेट करने के लिए. ग्रॉस प्राइस कितना है? 20,000. Okay, now from this 20,000, okay, what happened? They have calculated how much? Trade discount. Trade discount कितना है? 8% trade discount. So here from 20,000 if you calculate 8%, okay, what you get? 1,600. Now from this 1,000 it is 20,000. It is not 20,200. Okay, it is only 20,000. So from this 20,000 you have to deduct 1,600, क्योंकि 8% अगर 20,000 का निकालोगे तो हमें कितना मिलेगा? 1,600. So if you deduct 1,600 हमें अमाउंट कितना मिलता है? 18,400. Now this is your original amount. अभी जो 18,400 है उसमें क्या किया? he had paid the half amount immediately, मतलब 18,400 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हमें कितना आएगा? 9,200. Now on these 9,200 उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट दे दिया. So on 9,200 if you take 10%, okay, so that means it comes to 920 rupees. So 920 rupees को माइनस करोगे तो हमें कितना मिलेगा? 8,280. that is what? that is our cash which is received immediately. और बाकी का जो बैलेंस है that is 18,400 इसमें से 9,200 निकाला तो
तो रहेगा कितना 9200. दैट फॉर दैट another bill was drawn. Okay, so this is the working note. So let's pass the journal entries. क्या है जर्नल एंट्री? फर्स्ट क्या है हमारे, सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months ऑफ ₹20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑफ इंडिया एट ₹19,750. सो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ बिपिन जर्नल. ओके, यहाँ पे 19,750 मतलब 20,000 से अगर हम लोग 19,750 निकालेंगे, डेट मीन्स वी हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच 250. सो डिस्काउंट इज व्हाट, व्हेन वी give discount it is an expense for us. So Bank of India account debit 19,750, bill discount account debit 250 to bills receivable account 20,000, being Sonal's acceptance discounted with the bank. Okay, यहाँ पे क्या हो गया, जो सोनल का एक्सेप्टेंस था that was discounted with the bank. So this is the first journal entry. नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, जब हमारा डिस्काउंट होता है तो वो वाली एंट्री हम लोग पास करेंगे. सो यर इट इज़ व्हाट, इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ 3 months एंड 20,000 का बिल हम लोगों ने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया के पास क्लियर कर गया. सो यर द फर्स्ट एंट्री इज ओवर. द सेकेंड एंट्री क्या है, बिंदास एक्सेप्टेंस ऑफ ₹14,400 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट. मतलब ड्यू डेट आने से पहले क्या हो गया, इट गॉट रिटायर्ड मतलब, और वहाँ पे ड्यू डेट एट अ रीबेट ऑफ 12% पर एनम. मतलब कोई भी अगर ड्रॉवी हमें पैसे देने वाला है और अगर वो ड्यू डेट से पहले हमें पेमेंट करता है, डेट मीन्स वी आर सपोज टू गिव सम रीबेट. रीबेट मतलब रिफंड देना है. तो रिफंड क्या है, हम लोग अगर रिफंड दे रहे हैं डेट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट की तरह कंसीडर करेंगे. सो 14,400 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100. ओके, कितना आता है, हियर इट कम्स टू 144 रुपीज़. ओके, सो 144 इज व्हाट योर डिस्काउंट अमाउंट. सो 14,400 में से अगर हम लोगों ने 144 माइनस किया तो कितना आएगा, 14,256. ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट 14,256, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 144 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,400. ओके, being Brindas retired at 12% per annum for 1 month. Okay, so this is the journal entry. Let's see the third journal entry, that is what, Reka's acceptance of ₹8,500 is endorsed in favor of Gayatri. Okay, मतलब he has transferred it to whose name, Gayatri's, in full settlement of the amount of much 800 and 600 and in full settlement of our account 8,650. Actually we were supposed to pay how much, 8,650, but in यहाँ पे क्या दिया है, फाइनल सेटलमेंट मतलब फुल सेटलमेंट हो गया. तो हम लोगों ने कितना पे किया, वी हैव पेड ओनली 8,500. दैट मीन्स वी हैव रिसीव्ड सम डिस्काउंट. सो व्हेन वी रिसीव अ डिस्काउंट इट इज़ एन इनकम फॉर अस. ओके, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमें तो क्रेडिट करना है. सो Gayatri's account debit 8,650 to bills receivable account 8,500 to discount account 150. Okay, being Reka's acceptance endorsed in full settlement. Okay, so this is the third journal entry. So let's see the last journal entry, that is what, sold goods to Vinaya 20,000 at 8% trade discount. Okay, तो जब हमें trade discount करते हैं तो as I told you, you have to show it in the deducted form. मतलब ट्रेड डिस्काउंट निकाल के हमें अमाउंट दिखाना है. सो लेट्स सी द जर्नल एंट्री. the first journal entry क्या होगी, with the discount which is given. Okay, so here Vinaya account debit 9,200. उसके ऊपर हम लोगों ने क्या दिया, जब कैश पेमेंट होता है तब हम लोगों ने कितना डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया. सो here Vinaya's account debit 9,200, डिस्काउंट कितना दिया, 920 रुपीज़. ओके, एंड कैश कितना रिसीव हुआ, 9,200 माइनस 920 रुपीज़. सो 8,280. टू सेल्स अकाउंट 18,400.
और जब इसका हम लोगों ने न्यू बिल ड्रॉ किया तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 9200 टू विनया अकाउंट 9200, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया फॉर द बैलेंस अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन विनया विच वॉज एक्सेप्टेड बाय हर, मतलब एक नया बिल उन्होंने ड्रॉ किया. सो दैट फॉर दैट रीजन फॉर द बैलेंस अमाउंट वी हैव टू पास अनदर एंट्री, दैट इज bills receivable account 9200 to Vinaya's account 9200. So these are the journal entries in the books of Bipin when certain circumstances are given. Okay, यहाँ पे एक ही ड्रॉवर है बिपिन और उसके पास इतने सारे ड्रॉवीज है. Okay, so here there are multiple drawings. Let's take another problem of a similar kind. Okay, journalize the following transactions in of Arvind on 24th October 2019. ओके, सो यर हमारा जो ड्रॉवी है वो कौन है, हमारा जो ड्रॉवर है वो कौन है, अरविंद है. अरविंद इज आर ड्रॉवर. ओके, नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री, व्हाट इज द ट्रांजेक्शंस गिवन, renewed Sainath's acceptance of 18,000 with interest of ₹380 for 2 months. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नया बिल किया. नया बिल कितने का किया, 18,000 का किया विद द इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच, 380 फॉर 2 months. ओके, सेकेंड सिचुएशन क्या है, साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस ऑफ ₹13,000 एंड्रोज टू साहिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹195. साहिल क्या करता है, अरविंद को इन्फॉर्म करता है दैट मीनल का जो एक्सेप्टेंस था, जो आपने एंड्रोज किया था, ओके, साहिल के नाम पे जो एंड्रोज किया था वो क्या हो गया, उसने पेमेंट नहीं किया. और उसने पेमेंट नहीं किया करके आई हैव paid what, he has paid how much, 195 rupees which drawer has to recover from the drawee. मतलब अरविंद ने मीनल के पास से क्या करना पड़ेगा, he has to recover. So this there will be 2 journal entries over here. Okay, next is what, accepted a bill of ₹16,400 at 2 months. Okay, 2 महीने का कितना बिल एक्सेप्ट किया, drawn on Chan and Sons. Okay, drawn on Chan and Sons for the amount due to them 19,000 and the balance paid in cash. Okay, so here amount कितना था, 19,000. so 16,400 का बिल निकाला और बाकी का जो अमाउंट था which were paid in cash. Okay, then the next is what, bank informed that Vidya's acceptance of ₹14,000 which was discounted was dishonored and the bank paid noting charges. मतलब बैंक ने क्या इन्फॉर्म किया कि विद्या को जो एक्सेप्टेंस था 14,000 का, उसका पेमेंट नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज डिसऑनर्ड. एंड इसने क्या किया, इट वॉज डिस्काउंटेड बिफोर द ड्यू डेट, मतलब ही हैज़ टेकन द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट. सो बैंक हैज चार्ज हाउ मच, 105 rupees एज अ नोटिंग चार्जेस. renewed bill on Vidya's request for 2 months with the interest of 295. ओके, तो नया बिल बनाया तो उसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, 295 rupees विद्या हैज़ टू पे. ओके, सो हियर नेक्स्ट इज व्हाट, नंदिता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अरविंद 13,550 बाय पेइंग कैश 13,000. मतलब नंदिता ने क्या किया, ड्यू डेट आने से पहले पेमेंट किया. बिल का अमाउंट कितना था, 13,550, लेकिन उसने क्या पे किया, सिर्फ 13,000 पे किया. डेट मीन्स 550 इज द रिबेट, इज द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय अस, सो इट इज अ लॉस फॉर अस. ओके, सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री in the books of Arvind journal. Okay, first journal entry क्या है, renewed Sainath acceptance of ₹18,000 with interest 380 for 2 months. Okay, so here Sainath's account debit 18,000 to bills receivable account 18,000. Okay, now the next entry is what, renewal entry. जब इंटरेस्ट पे करते हैं, रिन्यूअल के साथ जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट के लिए सेपरेट एंट्री और जो रिन्यूअल करते हैं उसका एक एंट्री. सो इंटरेस्ट कितना है, साइनथ्स अकाउंट डेबिट 380 rupees to interest account 380 rupees being interest due. Now we'll pass the journal entry with the interest, that is 18,000 plus 380 rupees. Bills receivable account debit 18,380 to
to Sainath's account 18,380. Okay, so being new bill drawn along with the interest for 2 months and acceptance received. Okay, so this is the entry which we have to pass when a bill is renewed. Okay, next is Sahil informed Anvin that Meenal's acceptance of rupees 13,000 endorsed to Sahil was dishonored. Okay, जो endorse किया था उसने payment नहीं किया and he had paid noting charges how much 195 rupees. So what will be the journal entry? Let's see the journal entry. Meenal's account debit 13,195. 195 is what? Your noting charges. So 13,000 plus 195 rupees. So 13,195. To Sahil account 13,195. Okay. Being endorsed bill dishonored and noting charges paid. Okay. जो उसका bill था उसने dishonor किया and noting charges were supposed to be paid. Next. Here the next entry is what? Accepted a bill of rupees 16,400 at 2 months drawn on whom? Chand and Son for the amount due to them is how much? 19,000 and balance paid in cash. मतलब जो amount हमें कितना पे करना था 16,000. बिल कितने का क्या? 16,400. हम लोगों ने amount कितना पे करना था 19,000. ओके, सो here cash how much? बैलेंस उसने क्या बोला? कैश में पे किया. सो बैलेंस कितना हुआ? 16,000 19,000 minus 16,400, it comes to 2,600. So Chand and Sons debit 19,000, bills payable account 16,400 to cash account 2,600. Being bill accepted and cash paid. Okay, so this is the next journal entry. Next is what? Bank informed Vidya's acceptance of rupees 14,000 was discounted, was dishonored by the bank and paid noting charges how much? 105. Renewed the bill on Vidya's request for 2 months with the interest of how much? 295. पहले हम लोग dishonor entry वाली पास करेंगे. That is what? Vidya's account debit 14,105. 14,000 plus noting charges 105 rupees. So total मिला के कितना हुआ? 14,105. Okay. To bank account 14,105. Being discounted bill dishonored and noting charges paid. Okay. नेक्स्ट क्या होगी? व्हेन विद्या पेज इंटरेस्ट ऑन अ न्यू बिल दैट इज 295. विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 295 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. ओके, देन व्हेन उसका इंटरेस्ट के साथ जब अमाउंट पे करती है, ओके, सो उसके लिए एक एंट्री पास करनी है. दैट इज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 14,400. ओके, सो हियर 400 कैसे? 295 प्लस 105 plus 14,000 which comes to 14,400 rupees. 105 plus 295 comes to your 400 rupees. Okay, so 400 plus 14,000, 14,400 rupees. Bills receivable account debit 14,000 to Vidya account 14,400 being bills drawn along with the interest and acceptance received. Okay, so this is the journal entry when you have to pay the noting charges. The last one is what? Nandini retired her acceptance to Arvind of rupees 13,550 by paying cash 13,000. ओके, सो हियर उसने पहले ही ड्यू डेट से पहले ही क्या किया? अमाउंट पे किया. अमाउंट कितना पे करना था? 13,550 बट शी हैज़ पेड ओनली 13,000. डैट मीन्स उसको कितना डिस्काउंट दिया हम लोगों ने? 550 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया. सो हियर द जर्नल एंट्री विल बी cash account debit 13,000, rebate or discount account debit 550 to bills receivable account 13,550. Okay, so being Nandita's acceptance, it is not Nandini, it is Nandita's acceptance retired and rebate allowed. Okay, so this is the journal entry when the bill is retired
required before the due date. Okay, so next we will take one more problem which is having multiple journal entries, different types of journal entries. Okay, in your exam you will get such kind of a problem wherein there will be different types of situations. Okay, there won't be a same situation, there will be different situations बहुत सारे, जैसे कि डिसऑनर हो गया, हॉनर हो गया, रिटायर हो गया, रिन्यूअल हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, सो यूर ऑन बेस्ड ऑन दिस सिचुएशंस you will get some problem. So we'll take one more problem, that is journalize the following transaction in the books of Apurva. Okay, Prashant's acceptance for 60 days of rupees 12,750 deposited into bank for collection. मतलब he has sent to the bank for collection. Acceptance कितने का था? 12,750. Then next is one, Apurva sold goods to Kirti for how much? 20,000 and received her acceptance for the same amount for 2 months. Okay, the bill was endorsed to Rekha. मतलब जो अमाउंट था उसका एक्सेप्टेंस भी मिल गया 2 महीने के लिए, लेकिन वो बिल किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, एंड्रोज कर दिया. टू whom? टू रेखा. ओके, देन next is what, received 30% of the amount due from private estate of Mukta who was declared insolvent. मतलब she was not able to pay the amount, तो उसका सिर्फ 30% उसके प्राइवेट एस्टेट से मिल गया. मुक्ता हैज़ dishonored an acceptance of rupees how much? 23,850 and noting charges were rupees 150. ओके, तो यहाँ में 30% उसने, हाँ, उसके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे उससे हमें मिल गए, बाकी का क्या हो गया? शी डिडंट पे. ऑल्सो द नोटिंग चार्जेस कितने हैं उसके नाम पे? 150 रुपीज़. ओके, then the last one is what, Apurva renewed her acceptance of rupees 36,000 to Anuradha by paying check. कितना? 6,000 का पे किया. Accepting a new bill for 2 months for a balance along with the interest of a month 14.5% per annum. Okay, so these are different situations. So let's pass the journal entry in the books of Apurva journal. Okay, the first is what, when the bill is sent for collection. Okay, here what is given, Prashant acceptance for 60 days rupees 12,750 deposited into bank for collection. So bill sent for collection account debit 12,750 to bills receivable account 12,750 being bill deposited into bank for collection. Okay, so this is the first journal entry. Second is what, when Apurva sold goods to Kirti for rupees 20,000 and received her acceptance for the same for 2 months, bill was endorsed to Rekha. मतलब this bill was transferred to Rekha. So first is sales वाली entry, that is कीर्ति अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000. जब हमें सोल्ड वाली एंट्री, सोल्ड वाला ट्रांजेक्शन मिलता है, फर्स्ट चेक किसको सोल्ड किया, दैट एंट्री यू हैव टू पास फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट विल बी रिगार्डिंग बिल्स रिसीवेबल, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कीर्ति अकाउंट 20,000 बीइंग ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. नाउ द थर्ड जर्नल एंट्री विल बी रिगार्डिंग एंड्रोजी. ओके, एंड्रोजी कौन है? रेखा है. सो हियर रेखा अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 being Kirti's acceptance endorsed. Okay, so this is the journal entry when you endorse to somebody else's name. Okay, so these are the journal entries. First हमेशा याद रखना, वहाँ पे देखो सेल करके दिया है, सेल करके दिया है तो सिर्फ वहाँ पे ड्रॉवी का नाम आएगा डेबिट में. ओके, एंड देन सेल्स वाली एंट्री आएगी, वो पहले याद रखना. फर्स्ट चेक वेदर इट इज परचेज, सेल, somebody else's name is given, everything you have to check. You have to just not blindly pass the journal entries. Okay, next is what, received 30% of the amount due from private estate of Mukta
हु वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब उसको पे करने का नहीं हो सकता, सो शी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. सो हियर मुक्ता हैड डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, मतलब उसने उसका पेमेंट नहीं किया. कितने का? 23,850. एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड how much? 150 rupees. Okay, so here total comes to how much? 23,850 plus 150, so 24,000. टोटल हमें कितना पे करना है? 24,000 उसने हमें पे करना है. सो दैट मीन्स वी आर सपोज टू रिसीव. Mukta account debit 24,000 to bills receivable account 23,850 to cash account 150 rupees. B. Mukta's acceptance dishonored and noting charges paid. Okay, so this is the first entry. Now 30% amount which was recovered, तो उसके लिए क्या एंट्री आएगी? कैश और बैंक अकाउंट 7,200. 24,000 में से अगर हम लोग 30% निकालेंगे तो हमें कितना आएगा? 7,200. बैड डेट्स कितने हो गए? रिमेनिंग फ्रॉम 24,000 इफ़ यू माइनस 7,200 rupees. 7,200 if you minus it from 24,000, how much you get? 16,000. It is your bad debts because you will never going to receive the amount. So to bad debts account debit 16,800 to Mukta's account 24,000. Being amount received and bad debts written off on the on account of insolvency. ये हमेशा when you see it is bad debts, you have to know, मतलब आपको पता रहना चाहिए, एक बार या ध्यान से रखना चाहिए कि बैड डेट्स मतलब हमें ये पैसे कभी नहीं मिलने वाले. इट इज़ इररिकवेबल, वी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट. ओके, सो दिस इज़ द एंट्री व्हेन यू डोंट रिसीव द अमाउंट, व्हेन द पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट. लास्ट एंट्री इज अपूर्वा रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस फॉर how much? 36,000 to Anuradha by paying a check of how much? 6,000 and accepting a new bill for how much? 2 months. Okay, for the balance along with the interest at 14.5% per annum. Okay, so the first journal entry will be bills payable account debit 36,000 to Anuradha's account 36,000, being our acceptance dishonored. Okay, so this is the first journal entry. सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी? जो इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना है? 36,000. ओके, उसके ऊपर हम लोगों को कितना इंटरेस्ट पे करना है? 14.5% इंटरेस्ट. सो इट कम्स टू इन 725 रुपीज़. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 725 टू अनुराधा's account 725 rupees, being interest due. This is the journal entry when you are supposed to pay the interest. Next will be what? A new when if the check amount is paid, मतलब हम लोगों ने अगर कुछ अमाउंट पे किया तो उसके लिए एंट्री कौन सी होंगी? Here the entry will be Anuradha's account debit 6,000 to cash or bank account 6,000, being part payment paid. मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हम लोगों ने थोड़ा ही अमाउंट पे किया. आउट ऑफ 36,000 how much we have paid? We have paid 6,000. मतलब बैलेंस अमाउंट कितना रह गया? 30,000 बैलेंस अमाउंट रह गया. उसके ऊपर we have to pay the interest also because it is clearly given that person has to pay interest. Okay, so interest के साथ हम लोग कितना आएगा? 30,725. so Anuradha's account debit 30,725 to bills payable account 30,725, being acceptance given to new bill drawn along with interest. Here see, अभी ये जो एंट्री है यहाँ पे रिन्यू वाली एंट्री जब आती है, क्या याद रखना, जब रिन्यू की एंट्री आएगी तो हमें फर्स्ट क्या चेक करना है? कितना पे करना है. ओके, व्हेन वी आर सपोज टू पे, पहले चेक करो कितना पे करना है. उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना पे करना है वो चेक करो. देन यू हैव टू चेक अगर हम लोगों ने कुछ पार्ट पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री आएगी. लास्ट एंट्री कौन सा आएगी? इंटरेस्ट किसके साथ पे करना है? पार्ट पेमेंट के साथ पे करना है या बैलेंस पेमेंट के साथ पे करना है? ये दोनों चीज़ें चेक करो and then you have to pass the journal entry. So in today's class हम लोगों ने क्या देखा? सिचुएशन बहुत सारे हैं एंड इन लास्ट मैंने जो वीडियोस आप लोगों को बनाए एक्चुअली मैंने वो सारे सेपरेट बनाए. मैंने रिटायरमेंट के लिए सेपरेट बनाया,
सो हर एक चीज़ आई हैव एक्सप्लेन यू इन अ बाय टेकिंग वन कॉन्सेप्ट। जैसे कि रिटायरमेंट है तो कैसे आएगा, रिटायरमेंट मतलब ड्यू डेट से पहले पे करना, तो कैसे जर्नल एंट्रीज पास करोगे। व्हेन द पर्सन इज इंसॉल्वेंट व्हाट जर्नल एंट्रीज यू विल पास। इफ़ द बिल इज डिसऑनर्ड तो क्या जर्नल एंट्री आएगी। अगर वो डिस्काउंट हो गया या बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो कैसी जर्नल एंट्रीज आएगी। सो एवरीथिंग आई एक्सप्लेन डिफरेंटली। तो जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे सेपरेट सेपरेट, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द सिचुएशन। अगर एक ड्रॉवर है तो उसके साथ बहुत सारे सिचुएशंस दिए जाएंगे, जैसे कि अगर इंसॉल्वेंट है तो कैसे जनरल एंट्रीज पास करोगे। अगर एक ड्रॉवी ने बिल का हॉनर ही नहीं किया, एंड्रोजमेंट हो गया तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करोगे। अगर रिटायरमेंट है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करोगे। सो बेस मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे आप कैसी कैसी जर्नल एंट्रीज पास करोगे, डेट विल कम ओवर यर। सो इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओनली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग द सिचुएशन, मतलब क्या ट्रांजेक्शन दिया है। और जैसे कि अगर वो हॉनर है या डिसऑनर है, एंड्रोज किया है बिल को, या बिल का पार्ट पेमेंट हुआ है और बाकी का पेमेंट रह गया है। सो एवरीथिंग यू हैव टू चेक फर्स्ट, मतलब क्या क्या दिया है आप लोगों को, एंड देन ओनली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। सो एवरीथिंग लाइक आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करते समय फर्स्ट मतलब आप यू शुड बी वेरी मतलब क्या बोलते हैं, यू शुड बी मतलब जो जो जर्नल एंट्रीज है वो आपके दिमाग में फिट रहने चाहिए कि ये जर्नल एंट्रीज इसके लिए है। सो यू शुड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तभी ये जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से आ जाएगी। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर।